جی آگے چلتے ہیں ریلے ریس کی طرف۔ ریلے ریس جو ہے اس کو ریلی سے ہے، یا اس کو ہم جس طرح ڈاک دوڑ اس کو کہا جاتا ہے، تو ڈاک دوڑ میں کیا کام ہوتا ہے کہ ڈاکیا کیا کرتا ہے کہ ہم لیٹر کسی کو بھیجتے ہیں تو ڈاکیا وہ وصول کر کے اگلے بندے تک وہ لیٹر پہنچاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو پچھلے بندے سے کوئی چیز کوئی آبجیکٹ وصول کر کے اگلے بندے تک وہ چیز پہنچانا، اس کو جو ہے وہ ریلے ریس یا ڈاک دوڑ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک اسپیسیفک آبجیکٹ ہوتا ہے، ایک بیٹن جسے کہتے ہیں، بیٹن کو پاس آن کیا جاتا ہے، کھلاڑی ختم ہو جاتے ہیں، اپنا فاصلہ کور کر کے رک جاتے ہیں، لیکن وہ بیٹن جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، سٹارٹ لائن سے لے کر فنش لائن تک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو سٹینڈرڈ ڈسٹینس جو ہے وہ ریلے ریسز کے وہ 4x100 میٹر ریلے ریس، 4x200 میٹر ریلے ریس ہے، 4x400 ہے، 800 ہے، 1500 ہے، اور اسی طرح پھر میڈلے ریسز ہیں، یعنی کہ 100 میٹر، 200، 300، 400، تو وہ ان کو میڈلے ریسز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے۔ تو جب 4x100 لکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ 4 کھلاڑی ہیں اور ہر کھلاڑی نے 100 میٹر کا جو فاصلہ ہے وہ طے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کھلاڑی ہے وہ آ جائے گا، پہلا کھلاڑی ہے اس نے سٹارٹ لائن سے آغاز کیا ہے، اپنا 100 میٹر کا فاصلہ کو کور کر کے جو بیٹن ہے وہ دوسرے نمبر پر جو کھلاڑی کھڑا ہوتا ہے اس کے ہینڈ اوور کر دے گا، اور اس کا کام ختم، اس کی ریس کا اختتام، جو اگلا کھلاڑی ہے اس کا آغاز ہو گیا، لیکن بیٹن جو سٹارٹ سے شروع کیا تھا وہ کنٹینیو ہے۔ آپ رک گئے ہیں، اگر آپ ایتھلیٹ ہیں آپ رک گئے ہیں، لیکن بیٹن چل رہا ہے، اور بیٹن وہ دوسرا کھلاڑی 100 میٹر کور کرے گا، وہ تیسرے کو ہینڈ اوور کر دے گا بیٹن، لیکن خود رک جائے گا، تو اس کھلاڑی کا بھی جو ایریا ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن بیٹن کنٹینیو ہے، تیسرا کھلاڑی اس کو لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح جو چوتھا کھلاڑی ہے وہ اختتام کرتا ہے بیٹن کا، بیٹن کے ساتھ، اگر بیٹن نہیں ہے اختتام کرتا ہے، بیٹن ہی نہیں ہے ہاتھ میں، بیٹن پیچھے کہیں رہ گیا ہے تو وہ بے شک پہلے نمبر پر بھی پہنچ جائے، اگر بیٹن اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو اس کی جو پوزیشن ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تو اگر 4x200 میٹر ہے تو اس کا مطلب 4 کھلاڑی ہیں اور ہر کھلاڑی نے 200 میٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ اگر 400 میٹر ہے، 4x400 ہے، تو اس کا مطلب 4 کھلاڑی ہیں اور ہر کھلاڑی نے 400 میٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ ہوپ فلی اسی طرح جو آگے ہے ایونٹ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو 4 ہے یہ نمبر آف پلیئر ہیں، نمبر آف ایتھلیٹ ہیں، اور جو دوسری سائڈ کے اوپر آئے گا میٹر کے ساتھ وہ ہر ایتھلیٹ کا جو فاصلہ ہوتا ہے جو اس نے کور کرنا ہوتا ہے۔ تو جو ریلے ریس ہے یہ بھی ٹریک کے اوپر ہی جو دوڑی جاتی ہے، ٹریک کی جو سٹارٹ لائن سے آغاز کرتے ہیں، تو جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سٹارٹ لائن جو ہے وہ 5 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور ریلے ریس میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی گلی کے اندر جو رہنا ہے، اپنی گلی کے اندر ہی جو اس کو فنش لائن تک پہنچانا ہے۔ تو اگر 400 تک، اگر بڑی ریسز ہیں تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، پہلی گلی میں بھی آ سکتے ہیں، دوسری میں بھی آ سکتے ہیں، آخری گلی والا جو کھلاڑی ہے وہ ایک مخصوص فاصلہ طے کرنے کے بعد جو پہلی یا دوسری گلی کی طرف موو کر جاتا ہے۔ تو جو گلی کی چوڑائی ہے وہ 1.22 میٹر ہے، ہر کھلاڑی نے اپنی گلی کے اندر رہتے ہوئے یہ فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے جتنا اس کے آتا ہے۔ لینتھ ہے چینج اوور زون کی، چینج اوور زون کہتے ہیں اس ایریے کو جہاں پر کھلاڑی بیٹن تبدیل کر سکتا ہے۔ اب یہ چینج اوور زون کتنا ہوگا، یعنی کہ 100 میٹر کا فار ایگزامپل ہے، 4x100 میٹر ہے، تو کھلاڑی نے سٹارٹ لائن سے آغاز کیا، 100 میٹر سے پہلے جہاں پر اس کی حد ختم ہو رہی ہے اس سے 15 میٹر پیچھے اور 15 میٹر ہی اس سے آگے جو ہے وہ مارک لگے ہوتے ہیں، نشان لگے ہوتے ہیں اس گلی میں، وہ کیا ایریا ہوتا ہے چینج اوور زون، یعنی کہ جو سٹارٹ ہے وہاں سے لے کر جو 100 میٹر کے بعد آگے جو 15 میٹر ہے وہاں تک جو کھلاڑی ہے اس نے اپنا جو ساتھی کھلاڑی ہے، اپنی ٹیم کا دوسرا بندہ ہے، اس کے ہینڈ اوور بیٹن کو کرنا ہوتا ہے، تو اس کو چینج اوور زون کہتے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات آپ نے پڑھا ہوگا 20 میٹر اور بعض 30 پڑھا ہوگا، تو یہ کنفیوژن دور کر لیجئے کہ جو 30 میٹر ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے، 4x100 میٹر ریلے ریس ہے تو اس میں یہ 30 میٹر کا ہوگا، 4x200 میٹر ریلے ریس ہے تو اس میں بھی یہ 30 میٹر ہوگا، اور اگر میڈلے ریس ہے تو اس کی پہلی اور دوسری جو گلی جو چینج ہے اس میں یہ 30 میٹر ہوگا،
उसके अलावा जितनी भी बाकी हैं, यानी कि 4x400 रिले है, 4x800 है, 1500 है, तो उसमें जो चेंज ओवर जोन है वो 20 मीटर का ही होता है। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो अमूमी तौर पर डिस्कशन हो रही होती है कि जी चेंज ओवर जोन कितना होगा, 30 मीटर होगा या 20 मीटर होगा। तो उसके साथ आपको स्पेसिफिक किया जाता है जी किस रेस का पूछा जा रहा है। तो अगर 4x100 का पूछा जा रहा है तो 30 मीटर है, अगर 4x400 का पूछा जा रहा है तो वो 20 मीटर का एरिया होता है। तो इसको चेंज ओवर जोन कहते हैं। उसके अलावा एथलीट को बतौर निशानी लगाने के लिए एक जो चेक मार्क है वो लगा सकता है अपनी लाइन के अंदर, वो लेके टेप के साथ वो वक्ती तौर पर लगाई जाती है, उसको बाद में वहाँ से उतार लिया जाता है टेप। तो वो मैक्सिमम जो चढ़ाई है उसकी 0.05 से लेकर 0.4 मीटर तक जो है वो मैक्सिमम उसकी जो निशानी के तौर पर यानी कि 40 सेंटीमीटर की वो हो सकती है। तो बैटन जो है, जो ऑब्जेक्ट जिसको पास करना है, बैटन शैल बी स्मूथ, कोई खुरदरा नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, हॉलो ट्यूब होगी, अंदर से खोखला होता है, पाइप की शक्ल का, जिस तरह अमूमी तौर पर उसकी एग्जांपल है जो पानी वाले पाइप हैं जिनके साथ वायरिंग की जाती है, पाइपों की जो दीवारों में फिक्स किए जाते हैं, तो पीवीसी पाइप उसी तरह से ये बना होता है, हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, सर्कुलर इन सेक्शन यानी कि गोल होगा, बिल्कुल सर्कुलर शेप में होगा, लकड़ी का बना हो सकता है या किसी धात का बना हो सकता है या किसी और मटेरियल का, लेकिन एक पीस में होगा। ये नहीं है कि दो पीस और उसको दो लोहे के पीस है और उनको दरमियान से वेल्ड किया हुआ है, तो इस तरह यानी कि दरमियान में कोई जोड़ नहीं होता। तो जो बैटन की लंबाई है वो 0.28 से लेकर 0.30 मीटर या उसको 28 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के दरमियान होती है, या उसको हम 1 फुट भी कहा जा सकता है कि जो बैटन की लंबाई है वो 1 फुट होती है। तो डायामीटर जो है वो बैटन का वो 40 mm होता है, या उसको अगर हम सेंटीमीटर में कहेंगे तो 4 सेंटीमीटर जो है उसका डायामीटर होता है। वजन जो बैटन का वो 50 ग्राम होता है, खिलाड़ी के हाथ में ये बैटन होती है, और इसका जो कलर है वो दूर से विजिबल होना चाहिए। अमूमी तौर पर हर गली के लिए लैता कलर की जो बैटन है वो चूज की जाती है, तो दूर से वाज़े तौर पर उसका नजर आना जरूरी है। तो बैटन जो है वो रैली रेसेस में यूज किया जाएगा, और इसको खिलाड़ी ने कहाँ पकड़ा होता है, अपने हाथ में पकड़ा होता है, और हाथ में उसको पकड़ते हुए वो दौड़ की तरफ जो इख्तिताम की तरफ वो भागता है। अपना जो फासला जो उसको दिया गया उसको कवर करने के बाद इस बैटन को दूसरे अपने जो साथी खिलाड़ी उसके हैंड ओवर कर देता है। हर बैटन के ऊपर नंबर लगा होता है और ये डिफरेंट कलर के होते हैं, और आजकल चूंकि जदीद टेक्नोलॉजी है तो उस बैटन के अंदर टाइमिंग ट्रांसपोंडर भी मौजूद होता है, यानी कि टाइमिंग का मापने का आला कि कितना जो फासला है वो कितनी स्पीड के साथ ये कवर हुआ है फासला। बैटन चूंकि हरकत कर रहा है तो ये जो फासला कवर करके आ रहा है इसको कितना टाइम लगा, तो उसमें टाइमिंग ट्रांसपोंडर होता है जिससे जो खिलाड़ी है उसकी वो नुमाइशें यानी कि जो टाइम है वो वहां से भी लिया जाता है। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो टाइम है वो 3 तरह से काउंट किया जाता है। एक तो वो जो मैनुअली कर रहा होता है टाइम कीपर, दूसरा फोटो फिनिश जजेस जो साथ साथ वो क्रेन के ऊपर कैमरे चल रहे होते हैं, फोटो फिनिश जजेस वो नोट कर रहे होते हैं, तीसरा टाइम ट्रांसपोंडर जो होता है इसके साथ। तो तीनों का जो आपको रेट है फरमाइश वो इस तरह से निकाली जाती है। उसके अलावा एथलीट को हाथ में कोई दस्ताने पहनने की इजाज़त नहीं है कि उस या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है कि जिससे बैटन को मजबूती से पकड़ा जा सके या बैटन को वो ग्रिप करने में उसको एडवांटेज दे। तो इस तरह की कोई चीज़ हाथ के ऊपर लगाने की इजाज़त नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल दौरान खेल खिलाड़ी भाग रहा है, बैटन हाथ से गिर गया है तो वो उसको उठा सकता है, वो ही उठाएगा जिससे गिरा है। ये नहीं है कि पीछे से साथी खिलाड़ी आ रहा है वो उसको उठा के उसके बाद में हाथ में दे दे के तुम भागो मैं पीछे से आपको लेके आके पकड़ाता हूँ, तो इस तरह नहीं होगा। जिस खिलाड़ी से भागा है उस बैटन के एंड तक जाना जरूरी है। खिलाड़ी पीछे रह जाता है, बैटन आगे जाता है, तो अगर बैटन ही आपने पीछे छोड़ दिया खिलाड़ी के आगे जाने का फायदा नहीं है। जहाँ पर बैटन गिरा है ये फाउल नहीं है, अगर आप उसको दोबारा उठाकर दौड़ना शुरू कर देते हैं तो आपकी पोजीशन आपका टाइम जो जितने टाइम में आप पहुंचेंगे वही आपका कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा बैटन आपके हाथ से गिरा और मुखालफ की गली में चला गया है
तो आप उठा सकते हैं। मुखालफ की गली में आपको दाखिल होना पड़ता है, यानी कि नीचे गिरा और वो लुढ़क कर दूसरी तीसरी गली में जा रहा है, तो आप वहाँ से उसको उठा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि ऐसा करने से जो आपकी साथ वाली गली वाला खिलाड़ी है, आप उसके लिए रुकावट का बाइस न बन रहे हो। अगर आपके वो बिल्कुल साथ है तो फिर आपको उसको गुजरने देना पड़ेगा। और फिर आप, ये नहीं है कि वो आपसे बिल्कुल साथ था तो आप उसको धक्का दें और उसकी तरफ जाएं और अपना बैटन उठाने की कोशिश करें। इस सूरत में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इफ ड्यूरिंग द रेस एथलीट if during the race an athlete take or pick the baton of another team, their team shall be disqualified। अगर दूसरी टीम का गिरा और आप उठाकर भागना शुरू, अपना उठाते नहीं, आपका भी गिरा, किसी दूसरी टीम का भी गिरा है, आप अपना नहीं उठाते, आप दूसरी टीम वाला उठा के भागना शुरू कर देते, तो इस सूरत में भी जो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और ईच मेंबर ऑफ रैली टीम में रन वन लेग ओनली। वन लेग से मुराद वही 100 मीटर जो है, कि वो एक जो अपने हिस्से का जो फासला है वो ही करेगा। अगर 400 ज़रब 400 है तो फिर उसमें वन लेग कितनी होगी, 400। और अगर 4 ज़रब 200 है तो इसमें वन लेग कितनी होगी, 200। तो हर खिलाड़ी अपनी लेग जो है वही भागता है, अपनी जो उसका फासला है वही कवर करता है। तो जो टीम का ऐलान है वो 1 घंटा पहले कि कौन से खिलाड़ी हमारे होंगे इस टीम में, वो भागेंगे और किस किस तरतीब के ऊपर, यानी कि स्टार्ट कौन सा बंदा करेगा, दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा बंदा होगा, तीसरे पे कौन सा होगा और फिनिश कौन सा करेगा। यानी कि जो टीम ऑर्डर है, रनिंग ऑर्डर है, वो 1 घंटा पहले जो है वो डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद 4 ज़रब 100 मीटर रेस में तो क्लियर है कि हर खिलाड़ी अपनी अपनी लाइन में रहेगा। जो 4 ज़रब 100 मीटर रेस है उसमें हर खिलाड़ी अपनी अपनी लाइन में रहता है, अपनी गली में रहता है। 4 ज़रब 200 मीटर है तो उसमें चॉइस होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने जो लैप करने हैं वो 2 करने हैं, 2 यानी कि ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं। 4 ज़रब 200 टोटल आपने फासला भागना है 800 मीटर। तो आपको जो पहले एज दिया जाता है वो एक ट्रैक का दिया जाता है, एक चक्कर का दिया जाता है। तो उस सूरत में क्या होता है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपने ही ट्रैक में भागते हैं या आप 2 लेग पूरी करके उसके बाद जो है वो तीसरी लेग आप जो ब्रेक लाइन है उसके बाद आपको इजाज़त होती है कि आप पहली गली की तरफ आ सकते हैं। इसी तरह 4 ज़रब 400 मीटर रेस में होता है कि वो अपनी पहली लेग में बी रन इन लेन फॉर द फर्स्ट लेग as well as that part of second leg up to the nearer edge। पहली तो वो अपनी गली में भागेगा, दूसरी जब चक्कर के लिए जो दूसरा खिलाड़ी है वो एक ब्रेक लाइन के जब क्रॉस करता है किनारे को, तो उसके बाद वो अपनी जो लाइन है उसकी तरफ भी मूव कर सकता है या अपनी लाइन में ही रहेगा, ये उसकी अपनी स्वाबदीद है। इसी तरह जो मेडले रेसेस होती हैं, तो मेडले रेस में भी जो पहली 2 लेग हैं वो, अब मेडले में और दूसरी में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह 4 ज़रब 100 है तो उसमें हर खिलाड़ी ने फासला कवर करना है 100-100 मीटर का। तो मेडले में ऐसे नहीं होता। मेडले में एक खिलाड़ी 100 मीटर कर रहा है, दूसरा खिलाड़ी 200 मीटर कर रहा है, जो तीसरा खिलाड़ी है वो 300 मीटर कर रहा है, चौथा खिलाड़ी जो है वो 400 मीटर कर रहा है। तो इस तरह उनकी वो पहले से तरतीब बनी होती है कि ये बंदा इतना फासला कवर करेगा, लेकिन वो तरतीब सबकी एक ही होती है। उस जो रनिंग का आगाज़ है वो तमाम खिलाड़ी उसी तरतीब पे, उसको आगे हम डिस्कस करते हैं मेडले को। तो उसमें भी यही होता है कि एक चक्कर जो है वो तो आपने अपना पूरा करना है, फर्स्ट 2 लेग जो है वो आपने पूरी करनी है। उसके बाद जो है वो आप जो करीबी किनारा है उसकी तरफ भी आ सकते हैं या अपनी लाइन में भी रहकर उसको पूरा कर सकते हैं। तो मेडले रेस की तरफ आते हैं। कॉमन लेंथ है इसकी अमूमी तौर पर 800 मीटर या 1600 मीटर या 1000 मीटर भी होती है। तो अगर 800 मीटर वेरिएशन में आप रनिंग कर रहे हैं तो उसमें जो पहला एथलीट होगा टू वुड बी 200 मीटर लेग्स होंगी, यानी कि पहला खिलाड़ी है वो भी 100 मीटर भागेगा, दूसरा खिलाड़ी है वो भी 100 मीटर भागेगा, जो तीसरा खिलाड़ी है वो कितना भागेगा, 200 मीटर। तो अब 3 लोगों का फासला कितना हो गया,
400 मीटर। तो जो आखिरी खिलाड़ी बचेगा उसको कितना फासला कवर करना पड़ेगा, 400 मीटर। यानी कि 100 मीटर के बाद बैटन चेंज हुई, फिर 100 मीटर के बाद बैटन चेंज हुई, फिर 200 मीटर के बाद बैटन चेंज हुई, और फिर 400 मीटर के उसने फासला कवर किया और जो दौड़ का इख्तिताम किया। 800 मीटर में ये वेरिएशन यूज जो है वो की जाती है, और इसको अमूमी तौर पर सुपर स्प्रिंट मेडले भी कहा जाता है। उसके अलावा यानी कि ये नीचे तरतीब भी है, उसको डिजिट से जाहिर किया जाता है 1124 के हिसाब से। तो 1 का मतलब 100 है, इसी तरह 1 का मतलब फिर 100 है, 2 का मतलब 200 है, और 4 का मतलब 400 मीटर। तो एब्रीवेटेड इसको इस तरह किया जाता है। इसी तरह अगर 1600 मीटर है तो उसमें जो पहली 2 लग हैं वो 200 मीटर की जाएगी। तो जब 200 मीटर जमा 200 मीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर। यानी कि पहले 2 खिलाड़ी 400 मीटर का फासला तय करेंगे। उसके बाद जो तीसरा खिलाड़ी है वो 400 मीटर उसका ऐड करेगा, यानी कि 800 मीटर फासला हो जाएगा। और उसके बाद जो आखिरी खिलाड़ी है वो 800 मीटर का जो फासला है वो तय करता है। तो इसको भी एब्रीवेटेड उसी तरह 2248 जो है वो किया जाता है। तो अगर 1000 मीटर के मेडले हो तो उसमें चूंकि अब इवन नंबर फिट नहीं आ सकते उसमें, तो फिर उसमें क्या किया जाता है कि जो पहला खिलाड़ी है वो 100 मीटर भागता है, दूसरा खिलाड़ी 200 मीटर भागता है, तो टोटल फासला हो गया 300 मीटर। तीसरा खिलाड़ी फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया जी, वो 300 मीटर वो भागता है, तो टोटल फासला हो गया 600 मीटर। अब 1000 मीटर है तो पीछे बच गया 400 मीटर, तो आखिरी खिलाड़ी को 400 मीटर की जो लेग है वो भागनी पड़ती है। तो इसको कहते हैं मेडले रेस, या इसको यानी कि इस फॉर्मेट को 100 मीटर मेडले को स्वीडिश रैले भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, स्वीडिश रैले का। तो स्वीडिश रैले कौन सी होती है, जिसमें आपकी एब्रीवेटेड कौन सी बनती है, 1 2 3 4। तो के पहला खिलाड़ी 100 मीटर, दूसरा खिलाड़ी 200 मीटर, तीसरा खिलाड़ी 300 मीटर, और चौथा खिलाड़ी 400 मीटर। तो इसको क्या कहते हैं, स्वीडिश रैले। यानी कि ये अमूमी तौर पर ये मेडले जो ली गई हैं रेसेस, ये मकामी तौर पर जो खिलाड़ी थे वो इस तरह भागते थे, तो उसी को फिर ओलंपिक के इवेंट में भी इसको रिले रेसेस में इस इवेंट को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है जी हाउ बैटन कैन बी ट्रांसफर्ड, बैटन कैसे तब्दील की जा सकती है। 3 तकनीक है, अप स्विप है, डाउन स्विप है, और पुश पास है। और दो तरीके हैं, एक को कहते हैं हम विजुअल मेथड और दूसरा नॉन विजुअल मेथड, यानी कि देखते हुए बैटन वसूल करना और बिना देखे बैटन वसूल करना। जो स्प्रिंट रेसेस होती हैं उसमें तो बिना देखे ही बैटन तब्दील किया जाता है। खिलाड़ियों की परफेक्शन इतनी होती है कि वो बिना देखे ही वो बिल्कुल एक्सीलरेटर के ऊपर उनका पाँव होता है, अभी दूसरा बंदा चेंज ओवर जोन में दाखिल हुआ नहीं, ये पहले चेंज ओवर जोन के पास खड़े होते हैं, इनके पिछले लेग के ऊपर जो है वो लाइन के पास खड़े होते हैं और ये भागना शुरू कर देते हैं। ये एक्सीलरेटर पकड़ते हैं और पीछे वाला बिल्कुल साथ लगा होता है और वो उसके हाथ में बैटन बिना देखे, बस इनका हाथ पीछे की तरफ होता है और वो बैटन वसूल करते हैं और भागना शुरू करते हैं। जो लॉन्ग रेसेस हैं, यानी कि जिसमें 4,800 मीटर है, तो उसमें पता है कि हर खिलाड़ी ने 2 चक्कर निकालने हैं, तो उसमें विजुअल मेथड अमूमी तौर पर यूज किया जाता है कि खिलाड़ी पीछे को देख रहा होता है कि मेरा वो साथी आ रहा है। जाहिर बात है वो भी जब 2 चक्कर लगा कर आ रहा होगा तो वो भी थका हुआ होता है, उसकी जो पेस है वो ज्यादा होने की बजाय कम हुई होती है स्टार्ट की निस्बत। तो वो भी देख रहा होता है कि कब आए, उसको देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है, तो उसमें वो फिर बैटन देखते हुए वसूल करता है। अब ये बैटन पकड़नी कैसे है, उसके 3 तरीके हैं। तकनीक उसको कहा जाता है अप स्विप, डाउन स्विप और पुश पास। तो अप स्विप में कैसे क्या होता है कि जो रिसीवर होता है, जिस बंदे ने आगे वसूल करना है बैटन को, वो अपना जो हाथ है वो पीछे अपनी जो हिप है उसके बराबर जो एक्सटेंड करता है और पीछे की तरफ उसने पूरा खोला होता है, और जो उसकी हथेली है उसका रुख नीचे की तरफ होता है। अब ये याद रखना है, रिसीवर का रुख नीचे की तरफ होगा। जो अप स्विप है वो पकड़ाने वाले बंदे की जो तरीका है उसको देखकर ये नोट करना है, ये ना हो कि आप उसको डाउन स्विप कहते रहे और उसको अप स्विप कहते रहे। जो पिछला बंदा जिस मेथड से दे रहा उस मेथड के मुताबिक ये टेक्निक का नाम होगा। यानी कि इसमें वसूल करने वाले का हाथ नीचे की तरफ, उसका जो हथेली का रुख है वो जमीन की तरफ होगा, और उसका जो अंगूठा है वो एक साइड के ऊपर होगा और उंगलियां एक साइड के ऊपर होंगी सारी, और उसने इस तरह जैसे वी बनती है तो उस शेप में अपने हाथ को खुला होगा। पीछे से खिलाड़ी आएगा वो उसके नीचे से, यानी कि हाथ के
निचली तरफ से ऊपर की तरफ बैटन को पकड़ाएगा, तो उस वजह से इसको कहा जाता है अप स्विप कहा जाता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, एडवांटेज ये है कि नॉर्मल पोजीशन होती है रिसीविंग की हैंड की, कि वो पीछे की तरफ हाथ होता है और हाथ भी नीचे की तरफ है, पकड़ना आसान होता है। लेकिन जो दे रहा है आपको बैटन, जो गिवर है, उसके लिए ये मुश्किल होता है कि वो ऊपर से जब ऐसे नीचे से जब ऊपर की तरफ लेकर आता है, तो उसको ये मुश्किल होता है कि बैटन बिल्कुल वो वी शेप आपकी बनी हुई है, उसी के अंदर अगर आपको वो बैटन पकड़ाएगा, आप अंगूठे को बंद करेंगे उंगलियों के साथ, तो बैटन आप मजबूती से पकड़ सकेंगे, वरना जो बैटन है उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह डाउन स्विप है, तो डाउन स्विप उसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उसमें जो आपकी हथेली है रिसीवर की, वो ऊपर की जानब होगी, और जो पीछे से खिलाड़ी आ रहा है वो बैटन को आपको ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कोई चीज गिरती है तो ऊपर से नीचे की तरफ आपके हाथ के ऊपर रखेगा, और आप फौरी अपनी मुट्ठी जो है वो बंद करते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। ये इस तस्वीर में आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। और तीसरी तकनीक क्या है, पुश पास, उसमें हॉरिजेंटली आपने बैटन को पकड़ा होता है, बिल्कुल वर्टिकली, कि बिल्कुल जो है उसकी पोजीशन ऊपर से नीचे की तरफ है, और आप पिछला खिलाड़ी, जो आपका अगला खिलाड़ी है जिसने वसूल करना है, उसने अपना हाथ है वो पीछे की तरफ किया होता है, और उसका जो आप उसके हाथ में एक तो बैटन देते हैं और साथ उसको हाथ से ही धक्का भी देते हैं, ताकि वो अपनी जो रफ्तार है उसको मजीद बढ़ा सके। तो ये तरीका होता है, आपको तीनों तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये अप स्विप है। तो अप स्विप में उसका जो है वो तरीका, हाथ की हथेली है वो नीचे की तरफ है, जो गिवर है देने वाला वो नीचे से ऊपर की तरफ करेगा, वो अपनी उंगलियां और अंगूठे को इकट्ठा जोड़ेगा, तो और बैटन को काबू करेगा और भागने शुरू कर देगा। इसी तरह जो डाउन स्विप है, उसमें उसका हाथ जो है वो हथेली ऊपर की तरफ होती है, पीछे वाला खिलाड़ी ऊपर से उसके हाथ के ऊपर हथेली के ऊपर बार रखता है और उसको काबू करता है भागना। पुश पास में आपको तस्वीर से नज़र आ रहा होगा। तो ये थी हमारी रैले रेस। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप डिस्कस जो है वो कर सकते हैं।